So let's begin. Very important session in terms of exam, interviews, everywhere this question is being asked from priority sector lending. Okay. So without further delay, let's start. What is priority sector lending? We expect 2 to 3 questions from priority sector lending and one must question in your interviews from priority sector lending. Okay. And this is most important chapter in terms of bank exams. In every bank exams, priority sector plays a very vital role. So we'll not waste our time. We'll start with PSL. So what is PSL? Priority sector lending is an important role given to the banks for providing specified portion of their bank credit to specific sectors. Priority sector lending में क्या है, उसी सेक्टर को एम्फासिस किया जाता है जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, और बैंक को ये दायित्व दिया गया है, बैंक को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि स्पेसिफिक सेक्टर को वो अपना क्रेडिट प्रोवाइड करें जिसमें कम क्रेडिट के फैसिलिटीज अवेलेबल है मार्केट में, जहां पे बहुत कम लोग फंडिंग करते हैं, वहां पे प्रायोरिटी दिया जाए। और ये वो सेक्टर हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करने की जरूरत है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए। अंडरस्टूड? सेशन विल बी बाइलिंगुअल. So what is priority sector lending? It's a specified sector. It is constitutes of 8 sector as of now, and in that 8 sector we need to provide adequate credit so that our GDP growth or our economic growth will get a stimulus, it will get revamped. Okay, so these specified sectors are selected by Reserve Bank of India in accordance with, in consideration with the government of India, right? Sectors that are qualified to be listed as priority sector has certain economic and development importance. These sectors create a role in nation building, job creation, rural and sustainable development. ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, व्हाट इज द importance of priority sector lending for banks or for the country. So these are the importance because they provide adequate credit facility to sectors which is undermined or which has importance of economic growth and job creation, right? So this is how the PSL started. In 1972 there was a informal group which suggested PSL, and accordingly things get into consideration, and in 2000 priority sector lending certificate has launched, which is to be purchased by banks in case they fell short of their priority sector lending target. So these are the primary 8 sectors. In case asked in interview, you have to tell in this order. If you are a real banker, you need to tell in this order. You cannot memorize, tell that there is housing, there is education, not like that. You have to tell in order. Be a banker and answer like a banker. And when you are reading, you will have to focus your interviews. If you don't think you will qualify for interviews, then you are losing your time here, wasting your time here. So if you think that you are going to be qualified for an interview, you have to also read in the prospects of your interview. And in interview, you have to start with agriculture first, because agriculture is having the maximum cut in the entire PSL, that is 18%. We will go into that. So what are these sectors? Agriculture, it is very important. We are by and large we are a agrarian economy class में हमने देखा था कि भारत अभी भी, भारत के 60%, 58% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो अगर एग्रीकल्चर में एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता, देन आवर इकोनॉमी विल सफर, आवर पीपल विल सफर. ठीक है, और बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम बाहर देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं. ठीक है, सो यस, वेरी गुड. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल. यस वंदना, it is both in Hindi and English. Yes, it is both in Hindi and English. So एग्रीकल्चर, आपको अगर इंटरव्यू में जाना है तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया पीएसएल और आप बताने लगे कि हाउसिंग, एजुकेशन, इस तरह से अगर बताएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से बताना है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक बैंकर हैं और बैंकर की तरह इंटरव्यू में जवाब देना चाहिए. इसीलिए बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि इंटरव्यू में मैंने सारा आंसर दिया था बट मुझे मार्क नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने बैंकर के हिसाब से आंसर नहीं दिया. एक पता चल जाता है वो बैंकर कोई क्वेश्चन का आंसर देगा
और नॉन बैंकर जो पढ़ के रट के आया है वो आंसर देगा, तो उसमें डिफरेंस है। तो आपको एज ए बैंकर यू नीड टू आंसर ऑल ऑफ देम, ठीक है। और एंड में पूरा एमसीक्यू है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था उसी तरह से हमारा पूरा पूरा इसका जिस्ट जो है वो एमसीक्यू में है, और उसी एमसीक्यू से बाहर एक भी एमसीक्यू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप उसी को भी देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। और तो और जो पीएसएलसी है, पीएसएल में सब कैटेगरी है, एएनबीसी है, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, उसमें भी डिटेल में आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको इससे एलिमिनेशन में भी मदद मिलेगा दूसरे क्वेश्चन में, जब दूसरे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला आता है एग्रीकल्चर। व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी आर बाय एंड लार्ज an agrarian economy. 58% of our man force is dependent towards agriculture, ठीक है। सेकंड आता है एमएसएमई, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या है, हमारे 58% से ज्यादा लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, एंड 18% ऑफ आवर जीडीपी इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, राइट। MSME is the largest segment where it creates job for the informal sector, ठीक है। MSME जो इमर्जिंग सेक्टर है, इवन इन यूएस है, इन इंडिया, the more jobs created by MSME than the MNCs, big corporates, ठीक है। So that's why MSME is the most important pillar, and the MSME credit, adequate MSME credit is the most important factor of our economy. That's why you could see even after COVID, government has so much of emphasis on funding, giving loans towards MSME. और जो टारगेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, जो टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आरबीआई का टारगेट फोकस ग्रुप है एमएसएमई, ठीक है। तो क्वेश्चन एमएसएमई रिलेटेड भी आएगा, आपको समझना होगा अभी क्या मार्केट में चल रहा है, अभी क्या इंपोर्टेंस है, कौन से स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट का इंपोर्टेंस है, तो क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, दिस इज फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल, सो यू शुड हैव स्पेसिफिक नॉलेज। जैसे पीओ में कुछ भी एमसीक्यू बन जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। Through this MCQ, bank wants to select the right candidate, right set of candidate. So how they will know that these kind of people are right set of people? Through the right questions, by asking right MCQs or right questions in their interviews. So MSME, they will ask so many questions. Why MSME is important? For job creation, MSME is the largest sector for job creation in India. It creates more jobs than big corporates. Even in US, this is the the same trend is being followed. So MSME is very important. Export credit. Why export credit is important? To कैटर आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाएगा, जैसे 1992 में हुआ था। हमें ट्रेड डेफिसिट देखना पड़ेगा, जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जो देश एक्सपोर्ट ज्यादा करता है उसका इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। हमें एक्सपोर्ट करना होगा, ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, डॉलर्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो व्हाई एक्सपोर्ट क्रेडिट इज in third number, export credit is there. It gives us dollars, ये हमें डॉलर्स देते हैं। फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व के 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से मेजर चंक जो है फॉरेन करेंसी वो आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। housing for all is the government's agenda by 2022. So housing plays a very vital role, and it develops our infrastructure, our infrastructure, okay, social infrastructure, that is important. Renewable energy, the call for 21st century, we need sustainable development मतलब अभी डेवलपमेंट की बात नहीं होता है, nowadays we talk about sustainable development. I will come in economics class about sustainable development goal, SDG. There are 70 goals in SDG, and we will talk all about that. These are very important things for your bank, for your upcoming exam. We have done a rigorous research in last 10 to 12 days to find out what will be the SBI's or CBI's upcoming bank exams agenda for all of you, from where maximum questions you could see, okay, because the questions pattern are changing. You have seen IIBF have changed their question pattern.
So, and in the last 1 year, even IBPS, RRB people have changed their question pattern. So nowadays they want people with more practical exposure to come into banking industry. That's why SBI has realized their past SBI CBO recruitment was faulty. Yes, so we are talking about renewable energy because it's part of our SDG goals, 17 SDG goals, that is sustainable development. Sustainable development is something which is a part, which is the type of development where we don't compromise with our future generations needs, future generations prospects. ठीक है, जिस डेवलपमेंट के वजह से हमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखना ना पड़े, ठीक है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर सेक्टर्स, राइट. अब हम जाएंगे सब कैटेगरी में. कुछ कमेंट्स आपके आए हैं वो देख लेते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वेरी गुड क्वेश्चन, वो हम इकोनॉमिक्स के क्लास में पढ़ेंगे. बट बैलेंस ऑफ पेमेंट जान लीजिए, हम बाहर को कुछ पैसा देते हैं, बाहर से कुछ पैसा आता है, पेमेंट बैलेंस हो जाता है. बाहर को हम क्यों पैसा देते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं तो बाहर को पैसा देते हैं. बाहर से पैसा हमारे देश में क्यों आता है? बाहर में हमारे देश में पैसा तब आता है जब हम यहाँ से कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है. तब बाहर को अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं और बाहर से मान लीजिए 110 रुपया आ रहा है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया +10. अगर बाहर से 100 रुपया आ रहा है और हमारे देश से 90 रुपया जा रहा है, सॉरी, हमारे देश से 110 जा रहा है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया -10. So that is balance of payment. The outflow and inflow. Outflow divided by inflow is the, इट्स ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट मतलब वही है जितना हम ट्रेड करते हैं, जितना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है. और हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, सॉरी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बताया था ना 2000 से, नहीं बताया, जाके बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक्स क्लास में. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 2000 से 2003 तक पॉजिटिव रहा था. बाकी सारे आजादी के बाद से अब तक each year our balance of payment was in minus, in negative, but from 2000 to 2003 our balance of payment was in positive figures because of in that time there was the BPO sector was in growth, BPO sector was in boom, and India was exporting more IT services. So our balance of payment crisis, in our balance of payment was positive in only for 3 years, that is up to 2002 2003, and thanks to BPO sector boom. Okay, so and let's come to the priority sector lending target. This is domestic banks, foreign banks 40%, RRB and small finance banks 75%, urban cooperative bank from 40% in March 2022, 75% in 2024. Every year they have to increase it, and by 2024 March the priority sector lending target for UCBs, urban cooperative banks, will be at par with RRB and small finance bank, that is 75%. Now 75% target is there for SFBs and RRBs. Okay, getting it? Every next ANBC, everything is going to be very intense today. I want all of your attentions today. Yes, ANBC, ये सब ANBC और COBSE के परसेंटेज के हिसाब से है. नेक्स्ट डेफिनेटली हम ANBC COBSE डिस्कस करेंगे. जो भी जार्गन, जो भी पॉइंट्स आएगा सब क्लियर होगा. ये मेरा मतलब कमिटमेंट है. आपको पूरा ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा. पहले सब टारगेट्स देख लेते हैं. लेट्स सी फर्स्ट सब टारगेट्स, देन आई विल क्लियर ANBC COBSE. ये है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एंड क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, दैट इज व्हिचएवर इज हायर. वो नेट बैंक क्रेडिट के ऊपर होता है और ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के हिसाब से होता है. नॉर्मली ANBC के ऊपर ही होता है, इतना तो किसी का ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर नहीं रहता. ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर यानी कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यानी कि आपके लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी का जो ओब्लिगेशन है वो आपके बैलेंस शीट में दिखता नहीं है, वो ऑफ बैलेंस शीट में दिखता है, क्योंकि उसमें इमीडिएट फंड फ्लो नहीं होता है. जब कस्टमर डिफॉल्ट करता है तब उसमें फंड फ्लो की नौबत आता है और देन इट विल कम फ्रॉम ऑफ बैलेंस शीट टू दी बैलेंस शीट. ठीक है, तब तक वो ऑफ बैलेंस शीट में रहेगा. जो हायर है उसका परसेंटेज हिसाब किया जाएगा
तो नॉर्मली एएनबीसी का हिसाब करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का सब टारगेट क्या है? एग्रीकल्चर का सब टारगेट है 18% ऑफ एएनबीसी और सीओबीसी, आउट ऑफ व्हिच 10% इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर का सब टारगेट हुआ 18% और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का उसमें से हुआ 10%। 40% में से 18% यानी कि मेजर चंक is for priority sector, sorry, is for agriculture sector. Then the second importance is micro enterprises. Micro enterprises comprise 7.5% of ANBC or COB. Then comes the weaker section, COB या फिर COBSE, बैलेंस शीट एक्सपोजर। बैलेंस शीट को कहीं पे मैंने बैलेंस शीट BS लिखा है या फिर BE लिखा है, नॉर्मली इसको CEOBE बोला जाता है, ठीक है। वीकर सेक्शंस को है 12% ऑफ ANBC और COBE, whichever is higher. Okay, revised targets of small and marginal farmers and weaker section will be implemented in phased manner till 2023 and 24. जो नया रिवाइज है, रिवाइज्ड फिगर्स हैं, वो 2023 और 24 को लागू होंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ दीज आर द फिगर्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है, व्हाट इज एएनबीसी। पहले ये सब टारगेट देख लीजिए, ये आपके बैंक एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, सब टारगेट देख लीजिए। अभी बहुत कुछ देखना है हमें, एएनबीसी जब पीएसएल नहीं होता है तो क्या होता है, पीएसएलसी सर्टिफिकेट क्या है, रीट इनविट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, बैंक को क्या नुकसान है, फिर सारा एमसीक्यू, सब टारगेट का एमसीक्यू, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या टारगेट्स हैं, हाउसिंग में क्या कुछ है, बहुत सारे। क्योंकि एमसीक्यू आजकल ऐसा नहीं आता है कि 40% कितना टारगेट है, व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, वो बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो चुका है और आजकल बैंक्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, अमेंडमेंट नंबर्स, उससे क्वेश्चन आता है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे क्वेश्चन आता है, या फिर लॉ रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन आता है। Nowadays the question makers have evolved themselves, they are playing very smart with the students and there are too many of them, so they keep on researching like we do research in inside our inside our platform. So similarly every institution, those question makers do their research, and we are very fortunate to have in relation with so many people, those who make question, so we understand the concept of the question maker, what he thinks. I go on having so many discussion with them, so that's why I come up with right set of questions, right? So I challenge that in this MCQs today, whatever 20-30 MCQs we will discuss, all of them will be important and not a single question out of this will be asked. We have narrowed down the list of questions. Okay, so let's see ANBC, right? So पहले ANBC को जानने से पहले नेट बैंक क्रेडिट जानना जरूरी है। व्हाट इज नेट बैंक क्रेडिट? बैंक क्रेडिट इन इंडिया माइनस बिल डिस्काउंटेड विथ आरबीआई एंड अदर्स, ये सिंपल टर्म में है, ये है नेट बैंक क्रेडिट। जितने बैंक क्रेडिट्स मतलब जितना बैंक लोन भारत में दिया गया है उसको कहते हैं बैंक क्रेडिट, और बिल डिस्काउंटेड विथ आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। वीकर सेक्शन 12% इज एग्रीकल्चर और अदर। वीकर सेक्शन टोटल का वीकर सेक्शन एमएसएमई में भी कुछ वीकर सेक्शन रहेंगे, ठीक है, बाकी हाउसिंग में भी कुछ वीकर सेक्शन आएंगे, तो वीकर सेक्शन 12% टोटल अदर में सबको मिला के, और 10% एग्रीकल्चर में जो 10% है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो एग्रीकल्चर के अंडर है। 18% में से 10% जाएगा सीधा सीधा वीकर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, वो भी एक वीकर सेक्शन के टाइप में आते हैं, ठीक है। उसका भी डिटेल में जाएंगे, वीकर सेक्शन सब कुछ डिटेल में जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देयर इज ए सीक्वेंस में हमने क्लास लिया है और मॉडिफाई किया है, लास्ट क्लास को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग के लिए मैं एक सेशन लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बिल डिस्काउंटिंग मतलब आप मोटा समझ लीजिए व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग। देखिए एक बिल रिसीवेबल्स होता है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं या फिर कुछ बिजनेस करता हूं, तो मेरे जो खरीदने वाले हैं, they have purchased some goods from me or I have purchased some goods, so in that condition
आई हैव सम बिल रिसीवेबल्स, मतलब मेरे पास बिल है, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो बिल को दिखा के मुझे 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ मिलने वाला है, ठीक है। बट यू नो दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 1 महीने के बाद जो 10 लाख मिलेगा उससे इंपॉर्टेंट है कि मुझे 1 महीने से पहले मिल जाए, ताकि मेरे पास लिक्विड कैश रहे और मैं वो लिक्विड कैश को कुछ और काम में लगाऊं, फिर बिजनेस ग्रोथ में लगाऊं, ठीक है। तो मुझे जो मेरा खरीदार है वो 10 लाख मुझे नेक्स्ट महीने देने वाला था, ठीक है, या फिर मुझे वो मार्च 31 को देने वाला है। एंड एज पर द टर्म्स आई एम गोइंग टू गेट ₹1 crore फ्रॉम माई डेटर in March 31st, but that bill is lying idle with me. I need extra money to deploy and to deploy in my manufacturing, so that in that period I could manufacture some more goods and sell them. So what will I do? I will go to RBI or the firms, those who deal with bill discounting. I will say, see, this is 1 crore bill. I am going to get 1 crore in 31st March, but I need money immediately. Can you provide me a loan on that, or can you discount this bill? They will say, yes, give us the bill. They will, that is also part of bill purchase. They will purchase the bill from me, and as they are taking the risk out of me, they may not give me 100%, so they will give me 80% of that total amount of 1 crore. I may be getting rupees 80 lakhs. So they have discounted the amount and they gave me rupees 80 lakhs. So that is bill discounting. और उसके लिए वो फी भी चार्ज करेंगे और 1 करोड़ के बदले मुझे 80 लाख देंगे, वो बिल डिस्काउंटिंग हो गया, ठीक है। और बैंक रेट में हमेशा जो बैंक रेट पब्लिश होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसी रेट में ही बिल डिस्काउंटिंग होता है आरबीआई के द्वारा। समझ में आया? समझ में आया? गॉट इट? आई वांट ऑल ऑफ योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, प्लीज प्लीज प्लीज, इट विल मोटिवेट मी। तो एंड थ्रू बिल डिस्काउंटिंग बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ने फी इनकम, राइट? Getting it? I want all of you to be very crystal clear. Okay, so then comes the adjusted net bank credit, NBC. जनरल सर्टिफिकेट ऑफ दैट 1%, राइट? अभी आते हैं एमसीक्यू के ऊपर, 5 मिनट में सेशन को खत्म करते हैं। बैंक लोन्स अप टू व्हाट अमाउंट पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग अंडर आयुष्मान भारत टायर 2 टू टायर 6 सेंटर्स एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज मार्क्ड हियर, द राइट आंसर इज ₹10 crore, ठीक है। आगे मैं सवाल आपको करता जाऊंगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे चल के मिलने वाला है, ठीक है। बैंक लोन्स अप टू व्हाट अमाउंट पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर आयुष्मान भारत विल बी ट्रीटेड एज loan to social infrastructure. It is maximum 10 crore and for others it is 5 crore. Remember, for others it is 5 crore. अगर आयुष्मान भारत के हिसाब से कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उसके लिए टायर 2 और टायर 6 सेंटर में खड़ा कर रहा है, उसके लिए जो टारगेट रहने वाला है वो है 10 करोड़, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा सेशन हो गया है तो विल गो लिटिल फास्ट। आई नो लेंथी क्लासेस विल मेक यू फील बोर्ड, बट यहाँ पे सब लोग इंटैक्ट हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इसका आंसर था अलग से, मैंने नहीं देखा था, ठीक है, 10 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बैंक लोन्स अप टू व्हाट अमाउंट आर एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर इंडिविजुअल और हाउस होल्ड फॉर रिन्यूएबल